A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter 9 of your business, that is financial management. Okay. So in this chapter we have already discussed about the meaning of the financial management, role of the financial management. Next we have discussed the objective of the financial management. So what are the different objectives? That is profit maximization, maintenance of the liquidity, proper utilization of funds, and meeting of the financial commitment with creditors. Next we have started the topic, that is financial decision. So it is divided into three, that is investment decision, financing decision, and the dividend decision. So in the investment decision we have discussed about the where to invest the fixed capital. So what are the different importance and the scope of the investment decision. Next, factors affecting the investment decision. And next topic after that we have started the financing decision. So from which source the finance or the capital to be raised, so whether it is from the owner's fund or the borrowed fund. So factors affecting the financing decision. Next we have started the dividend decision. So factors affecting the dividend decision. Okay. So after that we have also started the topic, that is the topic that is financial planning. So in today's class we are going to discuss the financial planning. Financial planning means in advance how much to spend on what to spend according to the funds or at your disposal. Financial planning का मतलब सिंपल करना, that how much to spend, कि कितना स्पेंड करना है, एंड व्हाट टू स्पेंड, और क्या स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू दी फंड एट योर डिस्पोजल. जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके कंपनी में फंड है, आपको कितना डिस्पोज करना है उस फंड को. सो इन दी वर्ड्स ऑफ दी ज़ेरेस्टेनबर्ग, financial planning includes determination of the amount of finance needed by an enterprise to carry out its operation smoothly. मतलब जो भी फाइनेंस है, उसका अमाउंट है, उसको डिटरमाइन करना, उसका डिटर्मिनेशन करना, जो भी कोई भी इंटरप्राइजेस को जितने भी फंड की नीडेड है. क्योंकि फॉर कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली, कि उसके कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के जो भी एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली चलती रहे, उसके लिए फंड को क्या करना, फाइनेंस को क्या करना, डिटरमाइन करना. सो दिस इज़ योर फाइनेंशियल प्लानिंग. सो डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द फंड, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इशूड, कि किस टाइप के, ये डिटरमाइन करना कि सोर्सेज ऑफ फंड्स भी क्या होंगे. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही डिसाइड करेंगे ना कि फंड्स के सोर्सेज क्या होंगे और किस टाइप के जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो इशू होंगी. ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है कि हम लोग बोरोड फंड के थ्रू करेंगे या ओनर्स फंड में करेंगे. अब ओनर्स फंड में भी किसके थ्रू इशू करेंगे और बोरोड फंड के थ्रू भी किसकी थ्रू हम लोग फंड को लेंगे, तो ये भी डिटरमाइन करना. सो थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द suitable policies for proper utilization and administration of the fund. ओके, तो कोई जो पॉलिसीज़ हैं कंपनी, फर्म की, उनको भी डिटरमाइन करना. क्यों करेंगे? फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कि जो भी फंड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, या उसका प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हो या नहीं रहा है, तो उसके लिए फंड का डिटर्मिनेशन करना. अब इसमें देखो, कह रहा है कि द फाइनेंशियल प्लानिंग
The financial planning begins with the determination of the total capital required. So जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है वो क्या हो, बिगिन किसके साथ स्टार्ट करेगी, विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि टोटल कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है. सो फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डू द सेल्स फॉरकास्ट. अब इस केस में जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करेगा, सेल का फॉरकास्ट करेगा. मतलब फॉरकास्टिंग होती है कि उसको एक अजम्पशन करना कि कितना सेल हमारा होगा, पहले से ही उसको अज्यूम करना, अजम्पशन करना कि इतना सेल्स होगा. एंड इफ द फ्यूचर prospects appear too bright and expect increase in sale, then firm need to increase its production capacity. ठीक है, अगर ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है कि फ्यूचर दिख रहा है ब्राइट है, हाँ मतलब कि सेल्स क्या है वो इन सेल्स में इंक्रीज़ होगा, एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज़ इन सेल्स का क्या है, एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज़ होगा ही होगा. तो उस केस में क्या है, देन फर्म नीड्स टू इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब फर्म क्या करेगी, अपना जो भी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो इंक्रीज़ कर देगी. ठीक है, विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स. अब इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म फंड्स की क्या है, नीड भी अब ज़्यादा होगी. सो हायर लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड इंक्रीज इन सेल विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. ठीक है, अगर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो एंड अगर सेल भी इंक्रीज़ होगा तो ये क्या रिक्वायर करेगा, विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. उस केस में क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. क्यों, क्योंकि उस केस में जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है कि उसका मतलब सेल इंक्रीज़ हो रहा है. कोई भी जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में जब फाइनेंस से रिलेटेड होती है प्लानिंग, जब फाइनेंशियल प्लानिंग होती है तब डिसाइड मतलब एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में कितना एक्सपेंस हो सकता है. तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, एक फॉरकास्ट करता है कि कितना सेल हो जाएगा. अगर उसको दिखता है और फ्यूचर में होता है कि हाँ फ्यूचर मतलब इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होगी, उस केस में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है एज वेल एज है कंपनी को अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है. सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे मेन चाहिए कि कैपिटल हो. तो उस जगह पे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की जो डिमांड होती है वो बहुत बढ़ जाती है. So after the first, second one is that is after estimating the requirement of the fund, the next step of financial planning is deciding how to raise these finance. Okay, जैसे हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ये होगा कि उस फंड को, उस फाइनेंस को कैसे रेज़ करना है. सो फाइनेंस may be internally generated by the business or capital may have to be raised from the external sources. जैसे या तो जो भी फाइनेंस है वो कैसे जनरेट होगा, विद इन दी बिजनेस हो जाएगा, इंटरनली बिजनेस में हो जाएगा, या तो वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू होगा कि इक्विटी शेयर्स को इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, डिबेंचर्स को इशू करके, लोन लेके बाय द कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. So third one is that is financial planning is broader in scope as it does not end by raising estimated finance. मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वो ब्रॉडर कंसेप्ट है स्कोप में, एज इट डज नॉट एंड बाई रेजिंग एस्टिमेटेड फाइनेंस. बिकॉज ये जो एस्टिमेटेड फाइनेंस है उसके थ्रू ये रेज नहीं होता है. सो इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. सो इन फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस मैनेजर एनालाइजेस वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान
एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है फाइनेंस मैनेजर होता है, एनालाइज करता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान को, और उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है, उसी को वो सेलेक्ट करता है। सो फाइनेंस मैनेजर मेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। सो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो शॉर्ट टर्म एक फाइनेंशियल का प्लान करता है कि कैसे कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से रेस करना है, किस प्लान में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ बजट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव? सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन टू अचीव द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इंश्योर करना कि फ़ंड की अवेलेबिलिटी हो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है कि वो सफिशिएंट फंड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होना चाहिए, इट फॉर द डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए, सच एज परचेज ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स, अगर लॉन्ग टर्म असेट्स परचेज करना हो, टू मीट डे टू डे एक्सपेंस, जो भी डे टू डे एक्सपेंस है उसके लिए, एक्सेट्रा। सो इट इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस। ये इंश्योर ये करता है कि जो फाइनेंस है उसकी टाइमली क्या होती रहे, अवेलेबिलिटी होती रहे। अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, अवेलेबिलिटी होती रहे फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अवेलेबिलिटी होती रहे फंड की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राई टू स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी स्पेसिफाई करता है कि डिफरेंट सोर्सेज फाइनेंस के क्या हैं। ठीक है, सो दिस वन इज़ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकेंड वन इज़ दैट इज़ to see that firm does not raise resources unnecessarily. ठीक है, so excess funding is as bad as adequate or the shortage of funds। मतलब अगर ये क्या है कि फंडिंग क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सेस, जितनी हो, जितना ज़रूरत हो बस उतनी ही फंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तो ये उतना ही बुरा है जितना एक एज हम लोग कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा है, वैसी एक्सेस फंडिंग भी इज़ अ बैड। सो इफ़ देयर इज़ सरप्लस मनी, अगर सरप्लस मनी है, सो फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, अगर क्या है सरप्लस मनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी कि वो इन्वेस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती कहीं जितना पॉसिबल जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे ही क्या किया जाएगा, फ़ंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। एज कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कोई भी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको हम लोग ऐसे ही अनयूज्ड रखे रहे, आइडल रखे रहे, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये ग्रेट लॉस है। सो इसलिए उस मनी को कहीं ना कहीं पे क्या किया जाता है, जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल मैनर है वहाँ पे मनी को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बिकॉज उस मनी को रखने का कोई मतलब नहीं होता, जितना वो इट जस्ट अ काइंड ऑफ अ लॉस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल दीज disadvantages or the loss. So all the organization invest their money in the different plans. Okay, so financial planning includes both short term as well as the long term planning। ठीक है, financial planning में दोनों ही आते हैं, short term planning भी आती है, long term planning भी आती है। So long term planning focuses on the capital expenditure। ठीक है, long term जो planning होती है वो किस पे फोकस करती है, capital expenditure पे। Whereas short term financial plan are called the budget। और जो short term financial plan होते हैं short period के लिए, उनको budget बोलते हैं। budget include detailed plan of action for a period of 1 year or loss। ठीक है, budget में क्या include होता है, it is a detailed plan of action, मतलब डिटेल प्लान है कि एक्शन का कि क्या क्या करने वाले हैं,
हम लोग कौन कौन सा एक्शन करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, 1 साल के लिए या लेस मतलब 1 साल से कम के लिए कौन कौन से ऐसे डिफरेंट एक्शन करना है, उसी का एक डिटेल्ड प्लान होता है, कहाँ कहाँ से फंड को इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आएंगे. सो दिस इज़ ऑल योर financial planning and this is all your budget, right? So next topic is that is importance of the financial planning, कि जो financial planning है उनकी importance क्या है. So sound financial planning is essential for the success of any business enterprises. अगर कोई भी financial planning क्या हो, वो effective हो, वो वर्दी हो, वो कोई भी it is good for the any बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर देयर सक्सेस. ठीक है, अगर फाइनेंस प्रॉपर मिले तो ऑटोमेटिकली बिजनेस इंटरप्राइजेस का क्या होगा, सक्सेस होगा. इट्स नीड इज़ फेल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. उसकी नीड क्यों है, उसके ये सारे रीज़न हैं. सो फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर. मतलब फर्म को एक प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फॉर द फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या रहेगा, फंड अगर रहता है तो हम उससे कुछ भी जो भी फंडिंग की प्रॉब्लम अगर फ्यूचर पीरियड में आती है तो वी कैन मैनेज इट. सो इट हेल्प्स इन forecasting what may happen in future under different business situation. ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, फॉरकास्ट करता है what may happen in future, कि फ्यूचर में क्या होगा अंडर कोई भी डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में. अलग अलग अगर सिचुएशन होगी तो क्या होगा इन फ्यूचर. सो फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ प्रिडिक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल्स, कि अगर क्या है ये प्रिडिक्शन है कि 20% ग्रोथ होगा सेल्स में, तब उस टाइम पे क्या क्या ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो हम कैसे उन चीज़ों को कवर अप करते हैं. हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट टर्न आउट टू बी 10% और 30%. ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होने वाली, 10% और 30% होने वाली. द फाइनेंशियल प्लानर प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशन. ठीक है, अब जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, जो प्लान करते हैं, वो क्या करते हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट मतलब एक रफली उसको तैयार कर लेते हैं इन सारी सिचुएशन को, सो दैट मैनेजमेंट मस्ट नो व्हाट टू डू इन ईच सिचुएशन. इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट होगा उसको पता चल जाएगा कि व्हाट टू डू इन ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में क्या करना है. ठीक है. सेकेंड वन इज़ हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस स्टॉक्स एंड सरप्राइजेस. सो बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन. ठीक है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो भी बिजनेस के शॉक्स होंगे कुछ झटके में, उनको हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग दी ब्लूप्रिंट. जो भी हम रफली प्रिपेयर करेंगे कि क्या हमें करना है कैसे, तो वो अगर प्रिपेयर रहेगा तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ दैट इज़ कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन. सो इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शन, द प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ अलग अलग फंक्शंस को, जैसे प्रोडक्शन को, सेल्स को, मार्केटिंग को, फाइनेंस को, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज़ एंड दी प्रोसीजर. उनके जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको प्रोसीजर्स हैं, उनको एक दूसरे को एकदम क्लियरली बता के वो क्या करते हैं, एक दूसरे जो भी फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ proper utilization of funds. So detailed plan of action prepared under the financial planning, it reduces the waste, duplication of the efforts and the gaps in planning. ठीक है, अगर जो भी प्लान है वो डिटेल्ड में है, वो प्रिपेयर है अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो ये क्या करता है, ये जो भी वेस्ट हो जा रहा है फाइनेंस का उसको रिड्यूस करता है. डुप्लीकेशन ऑफ दी एफ़र्ट्स, अगर एफ़र्ट एक बार किए हैं फिर वही सेम चीज़ हो जा रहा है तो उसको डुप्लीकेशन को भी प्रोटेक्ट करता है. गैप्स इन दी प्लानिंग, की जो भी प्लानिंग में गैप्स हो रहा है उसको भी वो कवर अप करता है. नेक्स्ट वन इज़ इट लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर. सो इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर बाय एंटिसिपेटिंग सेल्स ग्रोथ एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी प्रेजेंट है उसको फ्यूचर के साथ क्या करता है, लिंक करता है. कैसे, सेल्स से, ग्रोथ से, इन सारी चीज़ों से
प्रेजेंट भी क्या होता है, फ्यूचर से इंटर रिलेटेड और लिंक्ड होता है. नेक्स्ट वन इज दैट इज 6. सो इट लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन. सो ये डिसीजन किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है और फाइनेंसिंग का जो डिसीजन है, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, लिंक करता है ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस. मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हुआ कि कहाँ पे डिसीजन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और फाइनेंसिंग मतलब कि थ्रू विच सोर्सेज द फंड विल बी दी रेज्ड, किस किस सोर्सेज से फंड रेज होंगे. तो इनके बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या करता है, लिंक करता है. नेक्स्ट वन इज दैट इज मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर. ठीक है, इवैल्यूएशन जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, उसको भी अर्लियर ही कर लेता है, मतलब जल्दी शुरू में ही कर लेता है. सो बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो ये क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको भी वो क्लियरली इवैल्यूएट भी कर लेता है. सो दीज ऑल आर दी सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, ये सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस है. पहला है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, हेल्प्स इन प्रॉपर बिजनेस utilization of finance, link present with future, base for the financial control, link between the investment and the financing decision, and makes evaluation of actual performance earlier. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, दैट इज मीनिंग. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसमें क्या होता है कि एक फंड का, मनी का क्या करना, एक्विजिशन करना, मतलब एक्वायरमेंट ऑफ द फंड को एक्वायर करना, उस फंड को यूटिलाइज करना, और उस फंड को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द दैट फंड और द दैट प्लस सरप्लस टू द डिफरेंट वेज दैट वी कॉल्ड एज द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड सो ऑन, लेबर्स एक्सेट्रा. तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि उन सारे फंड को मैनेज करना, कैसे हम कहाँ पे फ़ंड को कहाँ से एक्वायर करेंगे, उन फंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम उन फंड का डिस्पोजल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. क्यों, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली रन होती रहे. वही फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं. सो इट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड. इसमें क्या होता है, एस्टिमेशन करते हैं किसका, कैपिटल रिक्वायर्ड, एंड डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ द फंड. और इसमें ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज क्या होंगे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स. और उसमें हम बात करें यूटिलाइजेशन ऑफ द सरप्लस, इसमें कह रहे हैं ऑप्टिमली हम कितना इफ़ेक्टिवली उस फंड को यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट है दैट इज स्कोप. स्कोप, सो इट इज़ अ वाइडर इन स्कोप, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग. देखो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो ब्रॉडर कंसेप्ट होता है एज़ कंपेरिजन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है. वही सेम चीज़ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, इट इज़ नैरो इन स्कोप, ये नैरो होता है. एंड हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट और दी पार्ट. सो वन सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इसका पार्ट है. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग. थर्ड वन इज़ दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग. सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जो फाइनेंस से रिलेटेड है. इसमें क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, कि फ़ंड की अवेलेबिलिटी है, एंड टू सी दैट फर्म डज़ नॉट रेज द फंड अननेसेसरली. और ये भी देखना कि जो
फर्म है वो फंड को अननेसेसरली क्या करे, रेज ना करे। ये नहीं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो भी वो कंटिन्यूसली लोन ली जा रही है। जब ज़रूरत नहीं है तो हम लोग को वो लोन नहीं लेना है, क्योंकि इट बिकम्स ऑलरेडी ओवरबर्डेंड फॉर दी एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरबर्डेंड हो रहा है क्योंकि उनको वो लोन को पे करना है। अगर ज़रूरत है, necessary है, then they will take the loan or they can issue the shares as well as taken the debentures or issue the debentures. But if there is no need, so firm does not raise any kind of the fund. Okay, so this is the basic difference between the financial management and the financial planning. तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग में देखा, इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड दी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द कैपिटल स्ट्रक्चर मीनिंग। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ द डेट and equity used for the financing the operation of the business। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम प्रपोर्शन देखते हैं डेट का एंड इक्विटी विच इज़ यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए उसको क्या किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल, ये किसका प्रपोर्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेट एंड द इक्विटी, डेट अपॉन equity. So in other words, capital structure represent the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. So what kind of capital structure is best for the firm is very difficult to define। ठीक है, ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रपोर्शन बताता है किसका, कि कितना डेट कैपिटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और कितना इक्विटी का कैपिटल है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में। सो व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा किसी भी फर्म के लिए, ये बताना क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, इसको डिफ़ाइन करना वेरी डिफ़िकल्ट। सो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और द मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए जो भी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करे और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, जो वेल्थ है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का, उसको भी इंक्रीज़ करे। ठीक है, सो डेट एंड इक्विटी डिफर इन द कॉस्ट एंड रिस्क। जो डेट होता है और जो इक्विटी होता है बोथ आर डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क, दोनों ही डिफरेंट होते हैं कॉस्ट और रिस्क में। एज डेट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की सिक्योरिटीज़। ठीक है, डेट और इक्विटी क्या है, दोनों ही कॉस्ट और रिस्क में डिफ़र करते हैं। तो एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, जैसे ही आपको पता है डेट क्या है, वो लेस कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, बट ये क्या होता है, बहुत रिस्की सिक्योरिटी है। वेर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी, इक्विटी क्या है, वो सिक्योरिटी एक्सपेंसिव है बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सेफ होती हैं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेट क्या होते हैं, वो उसका कॉस्ट लेस होता है बट रिस्की ज़्यादा होता है, बट इक्विटी क्या है, वो एक्सपेंसिव है बट सेफ ज़्यादा होता है। सो डेट इज़ रिस्की, डेट क्या है, वो रिस्की है बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस। डेट रिस्की इसलिए कि जो भी उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है डेट पे, वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का वो लीगल ऑब्लिगेशन है दैट दे हैव टू पे, इट इज़ मैंडेटरी। इन केस ऑफ दे फेल टू पे डेट, सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम ओवर द असेट ऑफ द कंपनी। अगर जो डेट है उसको पे करने के लिए कोई भी कंपनी क्या है फेल हो जा रही है, उस केस में जो भी डेट सिक्योरिटी होल्डर है वो क्या कर सकता है, कंपनी के जो भी असेट्स हैं उन पे क्लेम कर सकता है। और उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने असेट को सोल्ड आउट करके या अपने असेट्स को ही उसको जो डेट सिक्योरिटी होल्डर्स है उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एंड इफ़ फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर फर्म क्या है वो भी फेल हो जा रही है कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट को भी वो नहीं रिटर्न कर पा रही है,
इट कैन इवन गो टू द लिक्विडेशन एंड द स्टेजेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी। उस केस में कोई भी कंपनी क्या है वो इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे भी जा सकती है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना दिवालिया निकलना, मतलब उसके पास सब कुछ ख़त्म, उस केस में भी हो जाती है। अगर वो प्रिंसिपल, वो अलग बात है कि जो उस पर इंटरेस्ट होगा उसको पे करेगा, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का परचेज़ किया गया था वो भी नहीं दे पा रही है, तो उस केस में कोई भी कंपनी क्या है वो एक इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे भी जा सकती है।